Hello everyone, Namaskar. Welcome to the beautiful platform of Adhyalay. This is lecture number 4 on the topic transport in plants. There are few terms on the screen. Do you have any idea about these things? What are these terms? Any idea about these terminologies? Imbibition. What is imbibition? Any idea? So what is imbibition? It basically talks about if water is getting absorbed or if anything is getting absorbed by solid. If water is getting absorbed, water absorption by dry materials. For example, if water gets absorbed into a seed, what is this process? It is imbibition. In rainy season, you might have observed if any door is made up of wooden doors, have you observed that you have problem in closing it? So what happens in rainy season? The wood which was dry, because of rain, it absorbs the water into it. And because of that, what happens? It gets swollen up, right? So if there is any wooden material which is dry, right, and water gets into it, that is also what? Imbibition. So I hope you understood what is imbibition. Yes? So it is special type of diffusion, है ना? It is special type of diffusion where what does happen? The water gets absorbed into dry things, है ना? Like seed, wood and all of it. Now few more terms are there written over here. Let me just check out if you know about it or not. First of all, let us check this out. Imbibant and imbibate. Imbibant and imbibate. In the process of imbibition, you can see water is there and seed is there. Between these two, which acts as imbibant? Who will tell me? Swati, is it correct now? So what is imbibant? The seed is imbibant. ठीक है? Substance which is imbibing. And what is imbibed? The substance which is getting imbibed. Getting imbibed. So in this case, what you can see? What is getting imbibed? Water. What is imbibing the water? Seed, wood. Similarly, now you can understand these two also. Adsorbate means what? The material which is getting adsorbed. For example, if I am writing on the screen right now, or in offline classes, what used to happen was we used to write on the green board or black board, right? So that process was what? On the solid was sticking, है ना? The chalk dust was solid, right? That process is adsorption. So what will be adsorbate? The chalk dust will be what? Adsorbate. The chalk dust. And what will be adsorbent? The whiteboard or blackboard will be adsorbent. Got it? Similarly, absorbent and absorbate, same concept. The substance which is getting absorbed, that is absorbate, which is absorbing, that is absorbent, which is absorbing, that is absorbent. Got it? So this is the small concept. I hope now you all have this in your mind. Cool? Moving ahead, this was the homework which I had given. I had asked you to just go through these terminologies from NCERT and try to see if you are understanding them or not. So you can see two terms here,
Symplast and apoplast. Symplast and apoplast. So what is symplast? Symplast. So plast is obviously membranes and all. And sim is related to what? Across living part. Across living part of the cell. So symplast means if the movement is happening across the cell, across the living part of the cell. What is living part of the cell? Is cell wall living? Think. I have, let's say this is one cell, this is another cell, okay? And this is cell membrane, this is cell membrane. This is plant cell. Obviously, you will have cell wall and you will have cell membrane. Cell wall, cell membrane, the inner one. Cell wall is dead, right? Yes, it is made up of cellulose. It is not living. Okay. So cell wall is dead. What about this? This is one cell. This is another cell. The space between two cells, is it living? The space between two cells, is it living? Intercellular space. The space between two cells is called as intercellular space. Intercellular space. Okay? So between the cell, the space, will it be living? Obviously it will be non-living, no? It is a space, right? खाली जगह. तो कहाँ से वो living होगा? अब यहाँ देखो. अगर मैं किसी चीज को अंदर में मूव करा रही हूँ, सेल वॉल वाला जो गैप है ना, ये वाले गैप में मूव करा रही हूँ, एंड मैं अगर किसी चीज को दो सेल के बीच में मूव करा रही हूँ, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं किसी सब्सटेंस को ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का जो गैप है ना, उसमें मूव करा रही हूँ, एंड मैं किसी सब्सटेंस को कहाँ मूव करा रही हूँ? दो सेल के बीच के गैप में. क्या वो लिविंग है? वो डेड है, वो लिविंग नहीं है. तो जब भी हम डेड वाले पे मूवमेंट करवाएंगे तो हम उसको एपोप्लास्ट बोलते हैं. जब भी मूवमेंट डेड पार्ट से होता है तो हम उसको एपोप्लास्ट बोलते हैं. तो एपोप्लास्ट में मूवमेंट कहाँ हो रहा है? ये वाला जो जगह है बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरसेल्युलर स्पेस. अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप कौन सा मूवमेंट बोलोगे? एपोप्लास्ट. सिम्प्लास्ट कैसा मूवमेंट होगा? लिविंग चीज को क्रॉस करना होगा. अगर मैं उसको सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करा दूं, इफ एनीथिंग आई हैव क्रॉस्ड इट टू सेल मेम्ब्रेन. जैसे ही मैंने सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कराया एंड साइटोप्लाज्म के अंदर लाया, these two is what? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करना. दिस इज गोइंग टू बी सिम्प्लास्ट. तो सिम्प्लास्ट में क्या आएगा? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. अगर वहां से आप मूवमेंट करवाते हो तो वो सिम्प्लास्ट होगा, डेड से कराते हो तो एपोप्लास्ट होगा. सिम्प्लास्ट में क्या हुआ पता चला ना? When the water gets absorbed from soil into the root, there are two ways by which the water moves. And what are those ways? सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट. समझ आ गया? दो तरीके से मूव करते हैं पानी, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट. आगे बढ़े तो हमने देखा कि एपोप्लास्ट एंड व्हाट? सिम्प्लास्ट के तरीके से पानी कहाँ पहुंच गया? जाइलम तक पहुंच गया. जाइलम किसके जाइलम? रूट के जाइलम तक पहुंच गया. रूट के जाइलम तक पहुंच गया. सोचो, जब एंट्री ऑफ वाटर होगी, बहुत ज्यादा अगर पानी आ रहा है तो पानी के साथ साथ आपका क्या होगा? कुछ मिनरल्स भी होंगे. पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी डिसॉल्व होंगे, राइट? आपको पता होगा दैट जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये पानी और मिनरल्स की वजह से क्या होने वाला है?
यहाँ के एरिया में क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा. देयर विल बी अ प्रेशर बिल्ट अप इन द जाइलम ऑफ द रूट. यहाँ एक प्रेशर बनेगा and that pressure will have the power to move the water for a smaller distance against gravity. है ना, ग्रेविटी से ऊपर उसको थोड़े से डिस्टेंस तक ले जा सकता है. और वो कौन है? दैट इज रूट प्रेशर. तो व्हाट इज रूट प्रेशर? ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, through symplast and apoplast in the xylem there is a pressure built. पॉजिटिव प्रेशर होता है. वो कैसा प्रेशर होता है? पॉजिटिव pressure. There is a pressure built due to entry of water through symplast and apoplast way in the xylem, and that positive pressure will be able to move the water to a smaller distance against gravity. Gravity के against जाके ये पानी को थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता है, पुश कर सकता है, थोड़ा सा पानी को पुश कर सकता है. That is root pressure. It is that positive pressure which is sufficient enough to take the water up for a smaller distance against gravity. Is it clear? Yes. So root pressure is the small positive pressure which is able to push the water to a smaller distance against the gravity. That's root pressure. What is guttation? Transpiration किसी को पता है? Transpiration? Transpiration. ये पता होगा आपको कि loss of water in the form of vapor. Transpiration is what? Loss of water in the form of vapor. In the form of vapor. और सबसे important structure कौन सा है transpiration के लिए? सबसे important structure कौन सा है transpiration के लिए? Stomata, है ना? Stomata से आपका transpiration होता है. ठीक है? Most of the transpiration happens through the stomata, जो पत्तों पे प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस. ठीक है. गटेशन की अगर बात करते हो, इसमें भी लॉस ऑफ वाटर होता है. लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में ही होगा. लिक्विड के फॉर्म में ही होगा. इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. There are some openings. कुछ openings होते हैं आपको, जिसको हाइडेथोट्स बोलते हैं. हाइडेथोट्स. तो हाइडेथोट्स वो ओपनिंग होगी जहां से आपके वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगे. क्वेश्चन है कि वो कब होंगे वाटर के फॉर्म में. वो कब होंगे वाटर के फॉर्म में? बहुत ज्यादा धूप होगी तब, या शैडो वाला टाइम होगा, मॉर्निंग टाइम, या बहुत रात का टाइम हो. बिल्कुल सही, अर्ली मॉर्निंग, है ना? अर्ली मॉर्निंग. ठीक है. या एकदम लेट नाइट हो जाए, बहुत नाइट, तब आपको गटेशन का इफेक्ट दिखता है. अदरवाइज हाँ, फॉगी डेज वगैरह में दिखेगा. अदरवाइज गटेशन इफेक्ट आपको आफ्टरनून में नहीं दिखता. हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो ग्रास में देखते होगे कि ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट? पत्तों पे देखोगे ड्रॉपलेट्स होते हैं. तो फ्रॉम वेयर दीज ड्रॉपलेट्स आर कमिंग? ये आपका रूट. एक देखो, घास कितना बड़ा होता है, एकदम छोटे छोटे घास होते हैं ना. तो घास में पानी आने की वजह क्या है? जो सुबह सुबह पानी आता है घास में, व्हाट इज द वजह बिहाइंड इट? इज इट ट्रांसपिरेशन और इज इट what is that thing which is causing guttation? ये तो पता है कि गटेशन हो रहा है क्योंकि वो पानी के फॉर्म में आ रहा है. What is the reason behind this guttation? रूट प्रेशर. क्योंकि ग्रास बहुत छोटा है ना, ग्रास छोटा है, तो रूट प्रेशर, इतना प्रेशर तो कर ही देता है कि वो वहां के लीफ के पार्ट से थोड़ा थोड़ा करके पानी बाहर आ जाए. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गटेशन? गटेशन का रीजन क्या है? रूट प्रेशर.
समझे? ये सारे जो मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना? प्लस बोर्ड्स तो है ही है, राइट? बोर्ड्स तो डिफिकल्ट होता है, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ एमसीक्यू आते हैं कॉम्पिटिटिव में, राइट? तो रूट प्रेशर की वजह से आपको गटेशन मिलता है, ग्रास वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि क्योंकि वो छोटे होते हैं, राइट, उसमें ज्यादा हमें दिखता है गटेशन। एंड वह वजह है क्या है उसकी? रूट प्रेशर। तो गटेशन के साथ साथ हमने ट्रांसपिरेशन भी सीख लिया, है ना? ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये आपका एकदम डे लाइट में होगा, जब बहुत ज्यादा धूप होगा तो बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। पता है मेन वजह क्या है ट्रांसपिरेशन की? जब गर्मी होती है तो आपको भी पसीना आता है, तो पसीना आता है तो आपको ठंडक महसूस होती है ना? वैसे ही प्लांट में भी ट्रांसपिरेशन होने की वजह क्या है? मेन वजह यही होती है कि ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कॉजेज व्हाट? कूलिंग टू द प्लांट, है ना? तो मेन वजह ये होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसपिरेशन कर जाता है ना? वो हम सीखेंगे। व्हाट इज स्टोमेटा? कोई ये बता सकता है व्हाट इज स्टोमेटा? होता क्या है स्टोमेटा? These are tiny pores, very good, present on the surface of the leaf. Very good. और कोई टेक्निकल टर्म में बोलो, और कुछ पॉइंट ऐड करो इसमें। ये करेक्ट है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। और कुछ ऐड करो इसमें, और कुछ ऐड करो। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा ना स्टोमेटा का, which helps in gaseous exchange. Very good. तो स्टोमेटा एक्चुअली क्या होता है? इस सेल का नाम क्या है बताओ? ये जो बीन के जैसा दिख रहा है ना, इस सेल का नाम बिल्कुल सही क्या है? गार्ड सेल्स। ठीक है? तो टेक्निकल तरीके से अगर कोई पूछे कि मुझे स्टोमेटा के बारे में थोड़ा और बताओ, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज द ओपनिंग, राइट? दिस इज द ओपनिंग, जिसको हम स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा, या फिर स्टोमेटल पोर बोलते हैं, राइट? तो दिस स्टोमा along with the guard cell, this stoma along with the guard cell is called as stomata. ठीक है? Stoma along with the guard cell is called as stomata. Got it? So these are the tiny pores present on the surface of the leaf which helps in gaseous exchange, and they are stoma along with guard cells. That is stomata. तो हमारा क्वेश्चन था कि स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है। वी वांटेड टू नो, इंडिया वांट्स टू नो कि स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है। तो स्टोमेटा से रिलेटेड जितने स्ट्रक्चर होंगे उसको आप स्टोमेटल एपरेटस बोल दोगे, है ना? मान लो ये आपका बीन शेप या किडनी शेप आपका स्टोमेटा हो गया, ये ओपनिंग हो गई। इसके ऊपर में आपका सब्सिडियरी सेल्स होता है, इसके ऊपर में सराउंडिंग इट क्या होता है? सब्सिडियरी सेल्स होता है। ठीक है? दीज आर सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। तो मैं इन सबको मिला के क्या बोलूंगी? स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमा, गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, इसके ऊपर भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो मैं सबको मिला के स्टोमा, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल्स, सबको मिला के जो स्ट्रक्चर का नाम होगा दैट इज स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है? एक और चीज ध्यान में रखो, ये जो किडनी वाला आपको मिलता है ना गार्ड सेल, वो डाइकॉट में मिलता है या मोनोकॉट में मिलता है बताओ? डाइकॉट में मिलता है। यू गेट दिस इन डाइकॉट। तो मोनोकॉट में किस में होगा? कैसा होता है मोनोकॉट में? गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबके भैया, अंकल, दोस्त सब जिम जाते होंगे ना? हाँ, तो कैसा? डम्बेल शेप का होता है। ठीक है? डम्बेल मोनोकॉट में होता है। डम्बेल किस में होता है? मोनोकॉट में होता है। चलो, आखिर ये जो गार्ड सेल्स है
उसमें ऐसा क्या स्पेशल है? What is so special about guard cells? What is so special about guard cells? इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना? हाँ, इनमें आपको क्लोरोफिल मिलेगा। गार्ड सेल्स में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट, है ना? मतलब इसमें आपको क्लोरोफिल मिलेगा। गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल मिलता है। और क्या खास बात है? और क्या खास बात है? इसके वॉल के बारे में कुछ सीखते हैं। इसका जो अंदर का वॉल होता है ना, कौन बताएगा? थिक होता है कि थिन, मोटा या पतला? जो अंदर की वॉल होती है वो थिक होती है, एंड जो बाहर की वॉल होती है वो थिन होती है। आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक। इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन। समझे? चलो एक और कॉन्सेप्ट सीखो। इसका मकसद क्या था? सुनो, क्यों अंदर का वॉल थिक होता है और बाहर का वॉल थिन होता है? मान लो कोई पानी नहीं है, ठीक है, देयर इज नो वाटर। जब कोई पानी नहीं है तो स्टोमेटा क्या है? बंद है। जब पानी अंदर नहीं जाता है तो स्टोमेटा क्या होता है? क्लोज रहता है। व्हेन पानी इज नॉट इनसाइड, मतलब व्हेन गार्ड सेल्स आर नॉट टर्जिड। जब गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं होते हैं, जब पानी अंदर नहीं गया है, नॉट टर्जिड, तो वो आराम से चिपके हुए रहेंगे, बंद रहेगा। इसी का मतलब है स्टोमेटा बंद रहना। जैसे जैसे पानी आप अंदर डालोगे, ध्यान से समझना, अंदर का जो है वो क्या है? जो अंदर का है वो बहुत थिक है ना, उसमें कुछ होगा ही नहीं। जैसे जैसे पानी आप अंदर डालोगे, अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वो बाहर वाली वॉल को क्या करेगी? प्रेशर देगी। जैसे जैसे एंट्री ऑफ वाटर होता है, जैसे जैसे एंट्री ऑफ वाटर होगा, गार्ड सेल आपका क्या हो जाता है? टर्जिड। तो अंदर आपको इनर वाला पता है बहुत थिक है, अंदर वाला थिक है ना, तो प्रेशर किसको मिलेगा? ज्यादा प्रेशर बाहर वाले को लगेगा। बाहर वाला पतला वॉल है ना, बाहर वाला वॉल कैसा है? थिन वॉल है बाहर वाला, तो इस पे प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने पे क्या होता है? वो पूरा फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा और ऐसा बन जाएगा, और बीच में बड़ा सा पोर आपको खुला हुआ दिखेगा। एंड दिस इज ओपन स्टोमेटा। इसी को बोलते हैं स्टोमेटा ओपन हो गया। तो वो क्वेश्चन भी पूछते हैं कि स्टोमेटा ओपन होने का रीजन क्या है? कौन से स्टेट में स्टोमेटा ओपन रहता है? जब जब गार्ड सेल्स कैसे होंगे? जब गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे। जब गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे तो बाहर पानी अंदर आने के बाद क्या होगा? टर्गर प्रेशर लगेगा, और उस टर्गर प्रेशर की वजह से पूरा मैक्सिमम साइज ले लेगा, वो पूरा फूल जाएगा, एंड आपको फिर दिखने लगेगा कि एक बड़ा सा पोर ओपन हो चुका है, एंड दैट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है? देन देयर इज ट्रांसपिरेशन, which just now we have discussed. ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना? जो धूप जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा धूप होगा, जितनी ज्यादा हवा चलेगी, उतना ज्यादा पानी वेपर में चेंज होगा, है ना? नाउ नेक्स्ट टर्म इज कोहेशन। एडहेशन भी सीखेंगे, कोहेशन एंड एडहेशन साथ में सीखेंगे। बहुत इजी है, एकदम इजी पीजी है, बहुत ज्यादा इजी है कोहेशन एंड एडहेशन। क्या है इसमें? को मतलब टुगेदर होता है ना, कोऑपरेट करो, साथ साथ रहो। को मतलब टुगेदर, तो इसको एकदम फेविकॉल, फेविकॉल याद रखो, सब याद रहेगा। फेविकॉल जो होता है आपका, क्या एक फेविकॉल यहाँ रहता है, दूसरा फेविकॉल कहीं और रहता है, या वो टुगेदर होते हैं? जो फेविकॉल आप लाते हो मार्केट से, वो खुद में भी स्टिकी है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? फेविकॉल आप जो मार्केट से लाते हो, दैट इज टुगेदर ना, फेविकॉल का जोड़।
वो खुद भी तो जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से, राइट? सो दैट, ये इट इज मोर लाइक बल्ला ना, इट इज मोर लाइक बैट, बैट के जैसा दिख रहा है इंस्टेड ऑफ फेविकॉल। चलो ठीक है। तो फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था एंड उसको बोलते हैं हम कोहेशन। यहाँ हम हमेशा पानी की बात करेंगे क्योंकि पानी आपका कहाँ से फ्लो हो रहा है, जाइलम से। तो मान लो जाइलम को फेविकॉल का डब्बा और जाइलम के अंदर है पानी। तो पानी के एक दूसरे मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, होगा ना? कभी देखते हो कि आधा पानी यहाँ है दूसरा पानी उधर है, ऐसा कभी होता है क्या? हमेशा वो कंटिन्यूअस रहते हैं ना। तो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल 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 क्या बोलोगे? कोहेशन बोलो। अब दूसरी चीज ध्यान में रखो, क्या कभी ऐसा देखे हो कि पानी फ्लो कर रहा है और पाइप पाइप से दूर है पानी, है ना, मतलब इतना जगह छोड़ के फ्लो कर रहा है। कभी ऐसा होता है क्या? पानी बोलता है मैं तेरे से चिपकूंगा नहीं, मैं तेरे वॉल से टच नहीं करूंगा, छी गंदा है, आई विल नॉट टच यू। ऐसा कुछ होता है क्या? हमेशा वो पाइप के वॉल के कांटेक्ट में रहता है कि नहीं? साथ साथ रहता है ना, पाइप के वॉल के कांटेक्ट में रहता है। यस और नो बोलो। यस मैम। तो यहाँ जाइलम के वॉल से भी कनेक्टेड होगा वो। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द जाइलम वॉल एंड इसको हम बोलेंगे एडहेशन। कुछ समझ आया? सेम सेम मॉलिक्यूल कोहेशन, टुगेदर टुगेदर, डिफरेंट मॉलिक्यूल एडहेशन। तो ये था आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल्स में जब था पानी पानी, कोहेशन पानी और जाइलम का वॉल के साथ, दैट इज एडहेशन। कूल। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है सरफेस टेंशन। क्या है ये? सरफेस टेंशन। हाँ, तो सरफेस टेंशन, कोहेशन, एडहेशन सब कुछ फिजिक्स में आपने पढ़ा है, मुझे पता है। तो सरफेस टेंशन आपका बोलते हैं ना, 10th में था शायद ये कॉन्सेप्ट, कि जब रेन वाटर आता है ऊपर से नीचे तो वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्यों हो जाता है? अच्छा क्लास 8 में था क्या? अच्छा, जब रेन वाटर पानी आता है ऊपर से ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्यों हो जाता है, गोल गोल क्यों गिरता? तो उसका रीजन आपने पढ़ा होगा। ये रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। व्हाट इज द रीजन? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में ज्यादा है आपका, ठीक है, हमेशा लिक्विड में ज्यादा होता है। ठीक। थ्री प्रॉपर्टीज विच यू हैव सीन, वाटर के रेस्पेक्ट में हमने तीन प्रॉपर्टीज एक्चुअली देख ली, एक कोहेशन, दूसरा एडहेशन एंड तीसरा सरफेस टेंशन। कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन। गॉट इट? ठीक है, आगे चल के हम सीखेंगे इसी की वजह से क्या हुआ था, पानी एक साथ फ्लो करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे पानी होगा और बीच में पानी रहेगा ही नहीं, पानी इल्ला। तो हम बोलते हैं ये तीनों चीज पानी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मतलब, कैपिलैरिटी मतलब एक साथ वो फ्लो कर सके अच्छे से, कैपिलैरिटी। जैसे आप स्ट्रॉ लिए, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो या जूस पी रहे हो यूजिंग अ स्ट्रॉ, तो व्हेन यू सक द जूस क्या होता है, वो साथ साथ वो कैपिलैरिटी है इसलिए वो कंटिन्यूस आ गया। कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से वो कंटिन्यूस फ्लो हो गया, दैट इज कैपिलैरिटी, है ना, साथ साथ आना। थिंग्स टू लर्न एंड व्हाट आर दे? वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, मतलब पानी ऊपर कैसे जा रहा है प्लांट में। फिर क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ तक? रूट के जाइलम तक, मतलब सॉइल से पानी लेना है और रूट के जाइलम तक पहुंचाना है एंड उसके बाद
वहां के बाद उसको ऊपर लेके जाना है। तो उसको जो ऊपर लेके जाना है उसी को क्या बोलोगे? एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैप? वाटर प्लस मिनरल, दैट इज सैप। तो एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू हो रहा है? जाइलम के थ्रू होगा एसेंट ऑफ सैप। क्या क्या है इसमें? हम दो चीजें सीखेंगे। पहला कि पानी रूट तक कैसे पहुंचा, सॉइल से रूट के जाइलम तक कैसे पहुंचा। इतना क्लियर हो गया ना आपको? जैसे ही यहां तक पहुंचेगा, यहाँ पे कुछ बन जाएगा जादू। रूट प्रेशर बनेगा यहाँ पे, और इस रूट प्रेशर से वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा प्लांट में, है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि पानी सबसे मतलब पानी कंटिन्यूस कैसे ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ऊपर तो रूट प्रेशर से चला जाएगा, लेकिन उसके बाद कौन आएगा? कौन है वो मसीहा? पता है वो कौन है? जितना ये सब पढ़े ना अभी, वॉट एवर यू लर्न जस्ट नाउ, इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं ना, जो मैंने पूरा टर्म पढ़ाया ना अलग अलग, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, आपको आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन एसेंट ऑफ सैप। गॉट इट? क्लियर है? Cool. So that is all for today. Tomorrow we are going to complete this chapter. All right. हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, and then we will complete it. Cool. Thank you so much. See you in